Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himrita Chandolia. Students, today we are going to start a new chapter of class 7 science, that is chapter number 17, and the chapter's name is Forests are Lifeline. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि water is our a natural resource, but in today's video we are going to discuss another natural resource, that is forest, and why forest is known as our lifeline. In today's video we are going to discuss about it. Student, if I ask you what do you mean by forest, then your answer will be like that. Ma'am, in forest there are so many trees, there are so many varieties of plants and trees, there are so many animals, it is a very dense area, isn't it? So students, in today's video we are going to discuss about forest. अब forest क्या होता है? Forest में animals रहते हैं, plants रहते हैं, how it is beneficial for us. Clear everybody? So have a look on the topics that we are going to cover in today's video. First we will discuss about that, what do you mean by forest, or we can say what is a forest. Okay, after that, forests are habitat of many kinds of animals. Yes, there are lots of variety of animals found in forest. After that we will discuss about the products we get from forest, our household products, our daily uses products are derived from directly, indirectly from forest. After that we will discuss about some crown shapes of trees, and finally we will discuss about the food chain in forest. Clear everybody? So student, have a look on the view of forest. सब बच्चों ने कभी ना कभी गांव जाते वक्त या कहीं घूमने गए हैं या कभी कोई वाइल्ड सेंचुरी देखी है या नेशनल पार्क्स देखे हैं, तो आपने जंगल भी ज़रूर देखे होंगे. बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट, दैट मीन्स जंगल क्या होता है, दैन यू विल गिव योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेप्शन, जो आपने देखा है या जो आपने पढ़ा है. तो जंगल में क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वहाँ मिलते हैं, isn't it? So students, in general we can say that this forest is a natural renewable source. Clear everybody? So the question is, what is a forest? Forests are renewable natural resources which play an important role in the maintenance of ecological balance. हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है इसको मेंटेन करके रखता है. कैसे? फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी हैं, हमारे लिए भी ज़रूरी हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के और प्लांट्स और ट्रीज़ हैं उनके लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं. Clear everybody? We are going to discuss about it in details. Okay? A forest is a community of trees, shrubs, herbs and other plants and organisms. Clear everyone? Okay? Students, forests take up a large amount of carbon dioxide and some other harmful particles and gases, keep the air clean. देखो, ये हमारे environment के filters हैं. हमारे इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन की वजह से जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं जो एयर है उसको क्लीन करते हैं, और इसीलिए दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 7th. इसीलिए हम फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? अर्थ के ग्रीन लंग्स, एंड इट इज़ ऑल्सो द water purifying system in nature. Clear everybody? अब फॉरेस्ट को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहली बात, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन. सो जस्ट डू अ विजिट ऑफ फॉरेस्ट. चलो, मान लीजिए आप जंगल में हैं और आप जंगल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से देख रहे हैं, तो आपको जंगल कैसा दिखता है? कि यस, देयर इज़ अ कवरिंग ऑफ ग्रीन शेड. दूर दूर तक हमें लैंड नज़र नहीं आती है, सिर्फ हमें नज़र आते हैं लंबे लंबे ट्रीज. क्लियर एवरीबॉडी? सो हियर वी आर गोइंग
to discuss a visit to a forest and just try to correlate what I'm teaching you with your experiences. Then it will be very interesting to understand it. Clear everybody? It is very easy chapter to understand and easy है लेकिन important भी है. Okay बच्चा? When we see at a height the broad view of फॉरेस्ट इज अप हियर. यस, हैव अ लुक. दूर से अगर आप कहीं एक पर्टिकुलर हाइट से जंगल को देखने की कोशिश करते हैं तो जंगल हमें ऐसा ही दिखता है. क्या आपको इस पिक में कहीं पे भी लैंड दिख रही है? नहीं. ईजिली वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट. ओके, वी कुड नॉट सी एनी लैंड. The different tree tops had formed a green cover over the land. And have a look, this is the green cover, जो top cover है. Okay? However, the cover was not uniformly green. हाँ, कभी कभी हल्का green, कभी dark green, कभी pale yellow ऐसा दिखता है. Uniform color तो नहीं होता है. Okay class? Students, the environment was peaceful and a cool breeze was blowing. Yes. कभी सुबह सुबह जंगल में गए हो या जंगल में कभी भी जाओ, हमेशा वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वो डेंसली एक तो पॉपुलेटेड होता है बाय द ट्रीज़. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं और भी डिफरेंट तरह के छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर. तो वहाँ पर हमेशा कैसी हवा चलती है? ठंडी हवा चलती है. क्लियर स्टूडेंट्स? वी कैन हियर अ साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. यस, देखो जंगल कभी भी शांत नहीं होता है. जंगल में से बर्ड्स की आवाज़ आती रहती है, डिफरेंट साउंड्स आती रहती हैं. और मूवीज़ में आपने देखा होगा कई बार जब जंगल से गुजरते हैं तो बहुत डरावनी आवाज़ भी आती है. क्यों? क्योंकि भैया हैबिटेट है भाई जंगल. वहाँ पे हर तरह का एनिमल रहता है, हर तरह के इंसेक्ट्स रहते हैं. वहाँ पर सब तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना देयर. यस. और ये नॉर्मल फिनोमिना होता क्या है? जैसे आप लोग आपस में बात करते हैं कहीं पर बैठ के, कहीं पर खड़े होके, वैसे ही दैट फॉरेस्ट इज़ अ होम फॉर एनिमल्स एंड दे आर जस्ट शेयरिंग द मैसेजेस. बातें करते हैं एनिमल्स वहाँ पर. एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स. यस, देखो ये एक दूसरे को बचाने के लिए भी एक सिस्टम है आवाज़ देने का कि हाँ दैट देयर इज सम आउटसाइडर इन आवर फॉरेस्ट. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट, अब ये जो हमारा फॉरेस्ट है ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए हैबिटेट है. यानी ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. इसका मतलब यहाँ पर उनका घर है. फॉरेस्ट प्रोवाइड दैम फूड एंड शेल्टर ऑल्सो. क्लियर एवरीबॉडी? और आप लोगों ने अगर कभी भी जंगल विजिट किया है तो यू विल फाइंड आउट दैट कि दैट फॉरेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग शेल्टर टू अदर प्लांट्स ऑल्सो. क्लियर? सो वी कैन से दैट forest provides a home for many animals and plants. अब बंदर तो सब बच्चों ने देखे हैं ना, वो प्लांट्स पे ही रहते हैं, ट्रीज पे ही रहते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? अब ये जो हमारा जंगल है इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, जस्ट लाइक बोर, बिसन, जैकल, porcupine, elephants. All these animals live in the deeper areas of the forest. Yes, देखो बंदर तो आपको जैसे ही आप एंटर होते हैं तो वहाँ दिख जाते हैं. लेकिन अगर आप कभी किसी नेशनल पार्क गए हैं या सेंचुरीज में गए हैं तो आप लोगों ने कभी ये लॉयन और टाइगर्स इजीली देखे हैं? नहीं. क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग इन द डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. Clear everybody? So that jungle, that forest is a home for all these animals. Clear everybody? Students, along with the animals, that forest is also having different types of trees and plants. अब ये trees और plants की बहुत सारे types हमें वहाँ मिलते हैं. What are they? In forest, the land is uneven and covered with many trees. Example, sal, seemal, neem, fig, amla, kachnar, teak, शीशम, पलाश, कैर, बैम्बू. अब इनमें से बहुत सारे जो
ट्रीज़ हैं ये हमारे आसपास भी हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल कैंपसेस में भी देखे होंगे या आपके आसपास जो हमारे गार्डन्स हैं, जो पार्क्स हैं, वहाँ पे भी देखे होंगे। यूजुअली नीम सब जगह दिख जाता है, आंवला दिख जाता है, कचनार भी दिख जाता है, शीशम is easily observable at roadsides. Students, all these trees like neem, shisham, simul and bamboo, they all combinedly together form a forest. Clear everybody? अब ये जो different type के जो trees हैं, they are providing shelter to animals. They are providing food to animals. Clear everybody? Students, there are several other trees, shrubs, herbs, grasses in the forest, and I hope everybody knows about shrubs क्या होती हैं, herbs क्या होती हैं, grasses क्या होती हैं। ये सब हमने क्लास 6 में पढ़ा है। देखो, जंगल में जो सेम हाइट वाले जो पेड़ होते हैं उनके साथ साथ क्या होते हैं, छोटे या फिर डिफरेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं, ग्रासेस भी होती हैं। क्लियर एवरीबडी? एंड अलॉन्ग विद दीज यू माइट हैव सीन द क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ऑल्सो। कितनी सुंदर सुंदर बेलें होती हैं वहाँ पर, समझ में आ रहा है? कुछ तो वो होती हैं। अब क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स भी आई होप एवरीबडी नोज दैट। क्लियर एवरीबडी? हमने क्लास 6 में हर्ब, शर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स ये सब पढ़ा है। ओके, सो अलॉन्ग विद दीज हर्ब्स, शर्ब्स एंड ग्रासेस, the forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers. समझ में आ गया? And they make the forest very beautiful. Clear everybody? The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. Yes, अगर आप कभी जंगल में गए हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो अंदर वाला जो पार्ट है हमारे फॉरेस्ट का, वहाँ पर सनलाइट बचा उतनी नहीं होती है जितनी कि आउटर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में होती हैं। वहाँ पर आपको हमेशा एक कूल इफेक्ट फील होता है। Clear everybody? And it is just because of the leaves of the trees, because they are densely populated there, and that's why जो सन की सनलाइट है वो उतनी नहीं नीचे पहुंच पाती जितनी कि वो बाहर पहुंच पा रही है। बिकॉज ये जो प्लांट की लीव्स हैं इन्होंने क्या कर लिया है, कवरिंग बना ली है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एक्टिविटी करते हैं और ये एक्टिविटी आपको ये बताएगी कि हमें फॉरेस्ट से कौन कौन से ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्लियर एवरीबडी? सो हियर व्हाट इज द एम ऑफ द एक्टिविटी? Observe the various things in your home and make a list of those which are made from the material which may have been obtained from the forest. अब फटाफट से अपने चारों तरफ देखो, अपने आसपास देखो, आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप काम में लेते हैं which are directly or indirectly derived from forest. सबसे पहले अगर आप सिंपल पेंसिल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो पेंसिल्स किसकी बनी हुई हैं? वुड की। तो वुड कहाँ से मिलती है? प्लांट ट्रीज से। वो कहाँ से मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बगल वाला जो पार्क का प्लांट या ट्री है उसको तो काटोगे नहीं। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं से तो उसको डिराइव किया है एंड दैट सोर्स बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट। क्लियर एवरीबडी? जब आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। विंटर्स में मम्मा लड्डू बनाती है ना, तो उसमें गोंद डालती हैं। दैट इज़ ऑल्सो द प्लांट प्रोडक्ट। क्लियर एवरीबडी? एंड दैट इज़ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द फॉरेस्ट। आपके घर में फर्नीचर है, आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं दैट इज़ द पेपर, इट इज़ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम देयर। Clear everybody? So there are so many things, your plywood, your furniture wood, ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिल रही हैं? फॉरेस्ट से। Clear everybody? So the conclusion in it, we might have many wooden items like plywood, fuel wood. जलाते हो ना, सर्दियों में सबके घर में तो नहीं जलता है, लेकिन गाँव में स्पेशली जो सर्दियों में चूल्हा जलता है उसमें जलने वाली लकड़ियाँ।
boxes, papers, matchsticks and furniture. All these are made from the word which is derived from forest. Clear everybody? Students, do you know that gum, oil, spices, fodder for animals and medicinal plants are also some of the products which we get from the फॉरेस्ट. यस, देखो गम. अब गम मैंने पहले ही बताया कि जो मम्मा लड्डू बनाती है उसमें डालते हैं, बट अलॉन्ग विद दिस वी आर गेटिंग अनदर टाइप ऑफ गम्स ऑल्सो विच आर यूजिंग एज अ adhesive. And oils, yes, for the cooking we are getting oils. ठीक है, अब कुकिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, जैसे सैंडलवुड ऑयल, जैसे क्लोव ऑयल, ठीक है, नीम ऑयल वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स मसाले, ठीक है, दालचीनी, तेज पत्ता, हल्दी, मिर्ची, धनिया, all these are basically derived from the plants. Clear everybody? Fodder for animals. अगर आपके घर के आसपास कहीं पर डेयरी फार्म है तो वहाँ पर जो गाय भैंसे हैं उनको जो चारा मिलता है, वो एनिमल्स जो चारा खाते हैं बच्चा, it is coming from our forest. Clear everybody? And along with these some of the medicinal plants. Medicinal plants में कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो हमारे सबके घर में होती हैं, तुलसी जी. Clear? ठीक है, आंवला, नीम. So all these type of plants are also we are getting from forest. और ultimately अब हम कह सकते हैं कि forest हमारे क्या हैं? लाइफ लाइन है, क्योंकि हमारी जो डेली जो चीज़ें काम में आ रही हैं दे आर टोटली वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. खाने पीने की चीज़ें, हमारे जो हम बैड यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में जो बाकी सब चीज़ें हैं, हम जो हमारे स्टेशनरी में यूज़ कर रहे हैं, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम फॉरेस्ट. क्लियर एवरीबडी? स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने शहद खाया है. शहद, अब आप कहेंगे मैम दैट इज मेड बाय हनी बी. यस, बट फ्रॉम वेयर हनी बी इज मेकिंग दैट हनी? फ्लावर नेक्टर्स कहाँ से? फ्रॉम फॉरेस्ट. और वो जाके कलेक्ट कहाँ करती हैं? ऑन द ट्री. दे आर मेकिंग देयर हाइव ऑन ट्री. सो along with these we are getting honey, we are getting wood, and by wood we are making wooden statues, we are making or we are using them for the as a sealing wax. देखो sealing wax क्या होती है? किसी भी चीज़ को हम पैक करने के जिसको काम में लेते हैं. वैक्स यानी मोम. हमें जब ये हनी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना बच्चा, तब भी हमें वैक्स मिलती है, बट दैट वैक्स एंड दिस सीलिंग वैक्स इज क्वाइट different. Clear everybody? Along with that we are getting gum. अब ये गम जो है ना, ये बहुत easily आपको मिल सकता है. आप लोगों के घर के आसपास या आपके स्कूल कैंपस में आपने वो ड्रम स्टिक वाला पेड़ देखा है, जिसको हम हिंदी में सैजन कहते हैं, सैजन का पेड़, और नॉर्मल भाषा में उसको सैजना का पेड़ भी कहते हैं, जिसमें वो लंबी लंबी ड्रम स्टिक्स आती हैं जिसको हम सांभर में डालते हैं. क्लियर एवरीबडी? उस पर आप देखना, आपको उसके ऊपर ये गम ईजीली मिल जाता है. और हर प्लांट, हर ट्री के पास अलग अलग तरह के गम होते हैं. ये वो हिंदी वाला गम नहीं है, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट वी आर हैविंग कैटेच्यू. ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर द प्रोडक्ट्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. अब स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही पेड़ से, एक ही ट्री से ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं. ठीक है, कुछ ही ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. नहीं तो हम एक पर्टिकुलर ट्री को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए काम में लेते हैं. जस्ट लाइक दैट हैव अ लुक बबूल. अब बबूल से हमें बेसिकली क्या मिलता है? गम. नेक्स्ट वन, शीशम. शीशम को हम नॉर्मली टिम्बर के लिए काम में लेते हैं. जो बड़े बड़े वो जो वुडन लॉग्स होते हैं ना, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम शीशम. नीम. नीम हमारा मेडिसिनल प्लांट है और जिसकी लीव्स भी काम में आती हैं, जिसकी बाग भी काम में आती हैं. क्लियर एवरीबॉडी? कुछ और अगर कहीं नहीं मिलता है, कभी भी चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो यू कैन यूज दैट नीम. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट सैंडलवुड ट्री. चंदन का जो पेड़ होता है उससे मिलने वाली जो लकड़ी होती है उससे हमें मिलता है सैंडलवुड ऑयल.
बहुत सारे ऐड आते हैं, हमारे साबुन में चंदन का तेल है, हमारे इस परफ्यूम में वो है एसेंस है. क्लियर एवरीबॉडी? सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, who would have planted these trees? Yes, this is a very interesting question. ये जो जितनी सारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये किसने उगाए हैं? मैं तो नहीं गई थी, आप गए थे या आपके एंसेस्टर्स गए थे? कौन गया था उनको उगाने के लिए? ये जंगल में कैसे उग जाते हैं? सो द आंसर इज, इन नेचर ट्री प्रोड्यूसेस एनफ सीड. And student, the forest floor provides favorable condition for them to germinate and develop into seedlings and saplings. और बाद में ये क्या हो जाते हैं? Some grow up into trees. Clear everybody? फॉरेस्ट का जो लैंड होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो सूटेबल होता है इनके लिए और ये वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? और फिर इनमें फिर सीड आएंगे, हम इनको कंज्यूम कर लेंगे, फिर इनके सीड जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे फिर वो ग्रो करेंगे. क्लियर एवरीबॉडी? तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि सीजन आता है, सीड्स ग्रो करते हैं, फिर वो डेवलप होते हैं, ट्री बन जाते हैं, फिर उनमें सीड्स आते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? तो फॉरेस्ट क्या है? अपने आप ग्रो करता है. ओके स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन अ ट्री वेरी केयरफुली. I hope everybody had seen. So the students, the branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the tree. अब इसको ऐसे समझो, देखो कोई भी ट्री है, उसका जो स्टेम है यानी जो तना है, उसके ऊपर जो ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है ना, जहाँ पर उसमें बहुत सारी पत्तियाँ लगी होती हैं. क्लियर एवरीबॉडी? एंड दैट अपर पार्ट, वो जो ब्रांची पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री. और ये हर ट्री में अलग होता है. एवरी ट्री हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउन. क्लियर एवरीबॉडी? जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं उनके क्राउन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. क्रिसमस ट्री का क्राउन डिफरेंट होगा, शीशम का क्राउन डिफरेंट होगा. बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्री का क्राउन क्या होता है. क्राउन इज द ब्रांची पार्ट विच इज प्रेजेंट अबव द स्टेम. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, द ब्रांचेस ऑफ द tall trees look like a roof over the other plants in the forest, and this is known as, or this is called a canopy. इसको ऐसे समझो, जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, फिर उनसे छोटे पेड़ भी होते हैं, फिर उनसे छोटे भी होते हैं, और नीचे क्या होते हैं? नीचे हर्ब्स भी होंगी, शर्ब्स भी होंगी, ग्रासेस होंगी, क्लाइंबर्स होंगे, क्रीपर्स होंगे. ये हम सबको पता है. क्लियर एवरीबॉडी? लेकिन जो सबसे लंबे ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? नीचे वाले जो उनसे छोटे वाले ट्रीज होते हैं उनके लिए एक रूफ का काम करते हैं, या एक रूफ बना लेते हैं छोटे पेड़ों के ऊपर. तो ये जो रूफ है दैट इज नोन एज कैनोपी. रीड इट अगेन. द ब्रांचेस ऑफ tall trees look like a roof over the other plants in forest, and this is called a canopy. Clear everybody? Have a look here. यहाँ पर ये जो लंबे लंबे पेड़ है ना, ये दूसरे जो ट्रीज हैं जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, ये उनके लिए एक रूफ का काम करते हैं, and that roof is known as canopy. Clear everybody? Students, अब एक और एक्टिविटी करते हैं कुछ और चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए. अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम जंगल में ही घूम रहे हैं. हम ये सारी चीज़ें, हमारा जो जंगल का एक्सपीरियंस है और जो हमारा घर में जो एक्सपीरियंस है उसको को रिलेट करके समझ रहे हैं. क्लियर एवरीबॉडी? अब यहाँ हमें क्या करना है? हमें एक फॉरेस्ट और या किसी भी पार्क को विजिट करना है जो भी आपके आसपास में हो, और आपको ऑब्जर्व करना है ट्रीज को एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम. हमारे आसपास के हम सारे मैक्सिमम ट्रीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमारे आसपास होते कितने ट्रीज़ हैं? नीम होगा,
शीशम होगा, ज़्यादा करेंगे बबूल होगा, शहतूत होगा, वो सैजन का होगा, क्लियर, मैंगो होंगे, कचनार, ओके। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज द हाइट, ओके, शेप्स ऑफ लीव्स, ओके, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो मज़े भी बहुत आते हैं। हम पता कर सकते हैं कौन से ट्री का कैसा फ्लावर होता है, क्या फ्रूट होता है, उसकी लीव्स कैसी हैं, अब उसका क्राउन कैसा है, क्योंकि अब हमें क्राउन के बारे में पता है। एंड ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज, यस वी विल डू। आप ये सब कर सकते हैं बच्चा। जब आप ये सब कर लेंगे दैन यू विल कंक्लूड दैट we find out that trees had crowns of different types and sizes. Clear? Have a look here. हम अगर ऑब्जर्व करने भी जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा ही सीन मिलेगा। अगर आसपास के किसी पार्क में जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज मिलेंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्राउन्स होंगे, ओके। These had created a different horizontal layers in the forest. Yes. अब बच्चा इधर देखो, कैनोपी आपको पता है, जो लंबे वाले प्लांट्स एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं दूसरे ट्रीज के लिए, ठीक है, जंगल में। अब क्या है, बड़े छोटे अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के हमारे पास क्या हैं, ट्रीज हैं, और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राउन्स हैं। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट और ये जो ट्रीज हमारे पास हैं, ये क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेयर बना लेते हैं। रीड इट अगेन हियर, क्लास 7th. These had created different horizontal layers in the forest and these are known as understories. देखो, have a look here. Canopy से नीचे जो नीचे वाले जो छोटे पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, दे मेक अ हॉरिजॉन्टल लेयर। और ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, फैली हुई जो लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी। Clear everybody? Giant and tall trees constituted the top layer. Clear everybody? अब जो आपके बड़े और लंबे पेड़ हैं वो क्या करते हैं, टॉप लेयर बनाते हैं, and that is followed by shrubs and tall grasses and herbs formed the lowest layer. देखो बच्चा, यहाँ पर देखो, जो लंबे और जो बड़े पेड़ हैं वो क्या करते हैं, वो टॉप लेयर बनाते हैं, और फिर उनके नीचे क्या होते हैं, हमारे पास श्रब्स होती हैं, ग्रासेस होती हैं, हर्ब्स होती हैं। ये सब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारी लोवेस्ट लेयर, यानी जो सबसे नीचे वाली लेयर है। समझ में आ गया? टॉप लेयर आपका अंडर स्टोरी और सबसे नीचे लोवेस्ट लेयर। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? अब स्टूडेंट्स, वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? देखो, अब जंगल तो सब जगह होगा, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, मिजोरम में भी है, जम्मू कश्मीर में भी होगा। तो क्या सबके यहाँ पर जो जंगल है, क्या उसके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज ही मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है। और इंडिया कैसा है भाई? इंडिया में तो सारे सीजन्स हैं हमारे पास, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। क्लियर एवरीबॉडी? हर मौसम हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। क्लियर एवरीबॉडी? सो द आंसर इज नो। Due to different climatic condition, there are variations in types of trees and other plants. अब देखो, टाइप ऑफ ट्रीज और प्लांट्स में वेरिएशन है तो अल्टीमेटली किस में वेरिएशंस आ जाएंगे? जो एनिमल्स हैं उनमें आ जाएंगे। अब आप देखो, आपके यहाँ पर जो जानवर होते हैं राजस्थान में, ऊंट राजस्थान में है, ठीक है, क्या जम्मू कश्मीर में आपने कभी ऊंट देखे हैं? सोचा है कभी? वहाँ पर नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो एनिमल्स मिलेंगे जो ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद करते हैं, लाइक योर शीप्स, लाइक योर याक। क्लियर एवरीबॉडी?
The types of animals also differ from forest to forest. Clear? जैसा देश वैसा भेष, और वैसे ही वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं वो. Clear? Students, we can see beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of herbs and shrubs. ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होता है जब हम जंगल से गुज़र रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो सिटी लाइफ है उसमें तो हमें बटरफ्लाइज देखना ही मतलब ऐसा हो गया. मुझे तो आजकल कहीं बटरफ्लाइज नज़र नहीं आती. हो सकता है कहीं किसी पर्टिकुलर पार्क में, गार्डन में जहाँ फ्लावरिंग बहुत है वहाँ पर आपको फिर भी नज़र आ जाएं. लेकिन जब आप जंगल से गुज़रते हैं, वहाँ से पास होते हैं, तब आप देखते हैं जो नीचे छोटे छोटे हर्ब्स हैं, शब्स हैं, वहाँ पर आपको बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाइज नज़र आती हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी मैस्मराइजिंग मोमेंट दैट टाइम. ओके, When we had a close look at the bushes, ठीक है, जंगल में जितनी भी झाड़ियाँ हैं, जब हम उन्हें देखते हुए निकलते हैं, ये शायद सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है कि जब कभी भी हम कभी जंगल से गुजरते हैं, पैदल चलते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हुए, तो आपने देखा होगा आपके बालों पे या आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उनके नीचे वाले हिस्सों में आपने बहुत सारे कांटे लग जाते हैं. एंड वो कांटे होते क्या हैं बेसिकली? These are seeds, and here we became a medium of seed dispersal. पढ़ा है हमने चैप्टर 12 में, isn't it? While doing that, our hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. Clear everybody? समझ में आ गया? Students, we came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves, and on decaying leaves on the forest floor. Yes, देखो, अब तक हम जंगल के ऊपर के हिस्से की बात करते आए. जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फिर उनसे छोटे पेड़ होते हैं, फिर उनसे छोटे हर्ब्स, शब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ग्रासेस होती हैं. लेकिन हमने हमारे फॉरेस्ट की ज़मीन की बात नहीं करी जिस पे हम अब तक चलते आ रहे हैं. अब ये जो हमारा जंगल का जो फ्लोर है, कभी आपने देखा होगा वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है बच्चा. कोई ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती है वहाँ, कोई क्लीनिंग करने नहीं आता है. आपको बहुत सारी पत्तियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ मिलेंगी, बहुत सारा. अगर वहाँ पे आसपास में ही अगर एनिमल्स गुजरते हैं तो एनिमल एक्सक्रीटा मिलेगा, लकड़ियाँ मिलेंगी, डिफरेंट आपको एनिमल्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे. देखो, बड़े बड़े जानवर हमें अंदर मिलेंगे, डीपर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में. लेकिन जिस जंगल से आप गुजर रहे हैं, जो आपका पैसेज है, वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वहाँ पर अपन को इंसेक्ट्स मिलेंगे, स्क्वेरल्स मिलेंगे, स्पाइडर्स मिलेंगे, आंट्स मिलेंगी. और जब हम बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे जिस ज़मीन पे हम चल रहे हैं वहाँ पर, तब हमें वहाँ पर छोटे छोटे और भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. क्लियर एवरीबॉडी? और अगर आप बहुत ध्यान से अगर उस ज़मीन को देखेंगे तो वो ज़मीन आपको बिल्कुल, उसकी मिट्टी आपको बिल्कुल वैसी नहीं मिलेगी जैसे आपके पार्क में या आपके गार्डन में मिलती है, या हमारी जो रोड है वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है. द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड, क्लियर, and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruit, seeds, twigs and small herbs. Have a look. आपको यहाँ पर उनके बीज भी मिलेंगे, जो फ्रूट्स लगे हुए थे वो गिर गए होंगे राइपन होके, वो मिलेंगे, बहुत सारी पत्तियाँ मिलेंगी, हर्ब्स मिलेंगी. क्लियर? इट इज़ नॉट सो क्लीन. ओके, एंड द सॉइल इज डार्क इन color. The decaying matter was moist and warm. Yes, it is moist and warm. अब हम हमारी जो जंगल की यात्रा है उसको यहीं पर स्टॉप करते हैं आज के वीडियो के लिए. आगे की जो हमारी जर्नी है we will continue it with the next video. Clear everybody? And I hope in today's video it is clear in everybody's mind what is a forest. Clear? It is a natural resource and it is also known as green lungs of our earth.
Clear? And how it is beneficial for us, how we can say that forest is our lifeline. Clear, everybody? We will continue our visit to our jungle in the coming video. Till then, keep reading, keep studying, and take care of yourself. Thank you.